Good morning, everyone. A very good morning to all of you. And today we are going to continue with the very discussion that we were doing that is related to air pollution. Okay, we looked at some of the constituents that are in the air and which are harmful. So we'll be looking at some more today, some more things that are important from the perspective of your exam and which are repeatedly asked. Okay, a very good morning, Astha Beta. Good morning, Sumit. So, in case you have any kind of confusion from yesterday's lecture, you can ask. W Beta, a very good morning. Khush rahiye. Now, we talked about nitrogen oxide, sulfur oxide. We talked about lead. So, we'll be looking at some more constituents that can be in the air and which can harm our health, which can affect the living tissues, which can create problem for the living species. Okay. So today the first thing that I'll take is maybe mercury. We did not talk about mercury. And this is also something which is really dangerous for human health. Puspanjali beta, a very good morning. Okay. And mercury, this is produced by the industries. Okay. And also electronics industries से आता है. Some of the electronic goods. You have CFLs, etc. Okay, a lot of these are responsible for this thing. Okay, what is blur beta? कोई दिक्कत आ रही है विजिबिलिटी में? So, is it not visible properly? क्या blur आ रहा है इसमें? Can you check your connection? Sumit, maybe your speed is less. Okay, maybe the speed is less, so you're facing the problem. Check your internet connectivity. Okay, क्योंकि blur होना नहीं चाहिए. Everything looks fine here. A very good morning, Renu beta. So if visibility is low, it means that there's some problem with the internet connectivity. Okay, Abhishek, a very good morning. ठीक है, Sumit, it is with your system, I guess. Rest of the people are telling me that everything is fine. So we'll be continuing. Okay. So mercury की हम बात कर रहे हैं. Okay. And हाँ ठीक है रेनू बेटा. Okay. So mercury is like it can lead to nervous disorders. Sleep disorders, that is insomnia. Okay, this is the effect of mercury contamination and it is very easy to get exposed to this thing. Special beta, खुश रहिए. I'm all good. Everything seems fine. Okay. And one of the disease which is very popular which is related to this is Minamata disease. ये disease क्या है कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है Minamata disease. Okay. So this has been asked many a times in exam कि which of the pollutants is responsible for Minamata disease. So you need to remember that this is mercury. Okay. Now it has potential of causing problems like you might have seen many people whose hands tremor. Okay. So this is also caused by the mercury. Tremors. हाथ कांपते हैं किसी किसी के, चेहरा कांपता है, तो that is also the exposure of mercury and irritation of the eye and everything. मतलब ये सब normal symptoms हैं. So they will not be asked, but Minamata disease is something that you need to prepare क्योंकि ये पूछा जा सकता है. Okay. So this is mercury. Now cadmium is another pollutant. Okay, it is also
coming out from the majority of the quantity is coming from industries. So cadmium के बारे में भी आपको एक बार पूछा गया है, okay, but what is the effect नहीं पूछा गया था. Which of the following are pollutants, ये पूछा गया था. कैडमियम को देख के बहुत लोगों ने अवॉइड कर दिया था. ओके, सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट एलिमेंट्स, इट अफेक्ट्स heart. Okay, so many of the heart ailments are associated with cadmium. तो इसका नाम जानना जरूरी है, because the year when it was asked many of the people thought that cadmium से कुछ नहीं होता है, क्योंकि रेगुलर बुक्स इसके बारे में बात ही नहीं करती. Okay, so you need to remember that cadmium is also this. In fact, if you talk about problems create करना, anything which is in more quantity will be trouble. फॉर एग्जाम्पल इन द कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, जो कॉटन डस्ट होता है उससे भी क्या है, लंग डिजीज हो जाता है. ओके, सो डिजीज किसी भी चीज से हो सकता है. इफ एनीथिंग इज इन मोर क्वांटिटी विच अ बॉडी कैन नॉट सस्टेन. ओके, फॉर एग्जाम्पल द कॉटन डस्ट. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब आप आंसर्स कर रहे होते हैं. जैसे कैडमियम तो फिर भी नॉर्मल है, लेकिन कॉटन डस्ट देख के लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो क्या है, नॉर्मल होगा. ओके, because a lot of people work in cotton industries, and you must have heard and seen people who work in the cotton industries and they do not look diseased, so we get confused. But cotton dust से क्या है कि it destroys the lung tissue. Okay, destroys the lung tissue. Okay, similarly those work in this marble industry, ठीक है, पत्थर जो मार्बल आपके घर में लगता है, it also destroys the lung tissue and fibrosis of the lung can result from this. Okay, the same thing is like the asbestos that is used for construction of the, अगेन इट डिस्ट्रॉयज द लंग टिश्यू. ठीक है, तो जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन वाला है, इफ यू लुक एट द सीमेंट इंडस्ट्री, ओके, अगेन इट डिस्ट्रॉयज द लंग टिश्यू बिकॉज दे आर वेरी फाइन particulate matter that is associated with these industries which when enter the lung they harm the lung. Okay, तो आप हर एक एक इंडिविजुअल का याद करने का नहीं सोच सकते हैं, but you need to understand that any industry where there is lot of dust, ठीक है, अब कोल डस्ट है, कोल इंडस्ट्री में कोई जा रहा है, तो एनी इंडस्ट्री विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डस्ट will destroy the lung tissue and in extreme cases they can lead to very dangerous diseases. Okay, so severe respiratory problems can be associated with all these. Okay, severe respiratory issues. Okay, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि इसको आप याद नहीं कर सकते, इसकी कोई लिमिट नहीं है. You don't know which kind of industry they'll suddenly ask. So you need to know if there is dust, it will severely cause respiratory issues, it will cause damage to the lungs. Okay. So bronchitis, chronic cough, ये words use हो सकते हैं इसकी जगह. ठीक है, bronchitis सांस लेने में दिक्कत आती है, chronic cough. So all such terms can appear in exam and you have to be very very clear that dust does that. Mithun, a very good morning. Okay, so everyone settle down. अब यही चीज क्या है कि कॉटन डस्ट की जगह सिलिका डस्ट लिख दे. ओके, सो कुछ भी लिखता है तो इट विल कॉज दिस. ओके, सीमेंट इंडस्ट्री, लाइक आई सेड, कोल डस्ट, ईच वन ऑफ देम. ओके, नाउ इसी में आप क्या है कि द सेम इफेक्ट इज बाय tobacco smoke. Again, if consumption of tobacco will lead to these things. And these are usually easy questions. बस ये है कि आपको अगर ये फीलिंग एग्जाम में आई कि मैंने नहीं पढ़ा है, you leave that and you lose marks. So you have to apply your brain and you have to make sure that you attempt that question wherever you see this thing. ठीक है.
Now, let us talk about the radioactive pollutants. The radioactive pollutants. Okay, इसका इफेक्ट क्या होगा? What do you think? आप जितना भी एक्सरे करवा रहे हैं, बीटा रे, रेडियम, जो भी, ठीक है, लोग शौक में घड़ियों में रेडियम लगवाते हैं, सो रेडियो एक्टिविटी इससे एसोसिएटेड है। एक्सरे को भी अगर हम देखते हैं, ओके, नॉट ओनली रेडियो एक्टिविटी बाय यूरेनियम, ठीक है, जब भी हम रेडियो एक्टिव देखते हैं तो हमारे दिमाग में यूरेनियम आता है, ओके, बट दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस, एनीथिंग दैट इज इमिटिंग, ओके, सम रेज। इसलिए बार बार क्या है कि कहा जाता है कि एक्सरे बहुत बार नहीं करवाना है, ठीक है। whenever somebody falls ill, you'll always see that even doctors advise कि do not get exposed to this thing, okay, because they destroy the living tissues and blood cells, destroy the living tissues and blood cells, okay, so over exposure to any of these, अभी यूरेनियम क्या है, दिस इज एक्टिव मटेरियल, सो इट डिस्ट्रॉयज मोर, बट एक्सरे जो कि एकदम नॉर्मल लगता है आपको, ओके, वो भी खतरनाक है, दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर द लिविंग टिश्यू, ओके, एंड especially it is dangerous because the cell function is destroyed, it directly affects the cell membrane, ओके, जो सेल की कवरिंग है उसी को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सो रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स आर रियली डेंजरस, ओके, एंड ओवर एक्सपोजर कैन लीड टू ब्लड कैंसर। फॉर एग्जाम्पल, आप ने बहुत बार सुना होगा कि रेडियो एक्टिविटी से एक्सपोज होने से लोगों की डेथ होती है, ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विथ ल्यूकेमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। सो इट कैन इन द लॉन्ग रन, इफ somebody is exposed to even X-ray for many times for a long period of time, they can get leukemia, or there can be some permanent genetic changes. Permanent genetic changes, and if some water is exposed to radioactive pollutant, it can lead to cancer as well, okay. So radioactive pollutant is डेंजरस, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब कोल डस्ट की जैसे हमने बात की थी, यहां हम बात कर रहे थे, ओके, सो कोल डस्ट भी क्या है, आपका कैंसर करवा सकता है। ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू कैंसर। जो कोल डस्ट से एसोसिएटेड कैंसर है, द कैंसर एसोसिएटेड विथ कोल डस्ट, इट इज कॉल्ड एज ब्लैक लंग कैंसर, ओके, तो अगर ये पूछ देता है कि ब्लैक लंग कैंसर इज एसोसिएटेड, तो कोल डस्ट, रेस्ट तो क्या है, ऑल ऑफ दीज आर देयर, हर चीज हो रही है, बट ब्लैक लंग कैंसर, ओके, या फाइब्रियोसिस वर्ड भी यूज हो, ओके, तो ये कॉमन है सब में, फाइब्रियोसिस, ओके, हार्डनिंग ऑफ द लंग लाइनिंग। फाइब्रियोसिस का मतलब क्या है, थ्रेड्स हार्ड हो जाते हैं, ओके, सो द लंग इज व्हाट, व्हेन वी ब्रीथ it expands, when we breathe out, breathe in expands, breathe out it contracts, तो उसमें पेन होने लगता है when fibrosis is there, okay, so it creates a very painful situation. So I hope that everybody is clear with this, okay, and now let us talk about some more things which are happening in the atmosphere. So we'll start with acid rain. अब एसिड रेन क्या है, व्हाट इज एसिड रेन? मिथुन, सुमित, रेणु, आस्था, भूमि, पूजा, अभिषेक, मुकेश। एसिड रेन बहुत ही कॉमन टर्म है, बार बार आप सुनते हैं, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ओके,
एट एन एवरेज अगर आप रेन की बात करें, ओके, द pH ऑफ रेन नॉर्मली इज 5.6, ठीक है। बचपन में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रल, एसिड, एसिडिक, बेसिक, ओके, दीज टर्म्स यू मस्ट हैव हर्ड। सो इसे हम क्या है पीएच में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कल मैंने बताया था मुकेश बेटा, फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है एटमॉस्फेयर में, ओके। सो एसिड किसी भी चीज से हो सकता है, ओके। हाँ, रेणु पुष्पांजलि, ओके। सो एनी काइंड ऑफ एसिड when it is there, if the pH of the rain drops below this, if the pH of rain drops below 5.6, it is referred to as acid rain, okay। and normally क्या है, it is very normal that, हाँ W बेटा, वेरी गुड, इट इज वेरी नॉर्मल जब भी CO2 एटमॉस्फेयर में है, CO2 इन एटमॉस्फेयर, ओके, एंड इफ इट रेन्स, सो इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, इट इज वेरी नॉर्मल, ओके। तो कार्बोनिक एसिड हमेशा रहता ही है, ये जो 5.6 है, this is also because carbonic acid is already there, okay। कार्बोनिक एसिड के होने के वजह से ये pH इतना रहता है इसका। but if even the concentration of the carbonic acid increases, okay, or there is sulfuric acid, formic acid, nitric acid, because of some of the reactions that are happening in the atmosphere, we call it as acid rain, okay। और usually क्या है, there is no doubt that usually mostly the oxides of sulfur and nitrogen are responsible for acid rain, ठीक है। नॉर्मली ये रहते हैं, लेकिन लाइक आई सेड, आपका ये चीज क्या है, कार्बोनिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से भी हो सकता है, ओके, सम अदर एसिड कैन फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जल्दी से ये नहीं होता है, ओके। मोस्टली इट इज बिकॉज नाइट्रोजन एंड सल्फर इज बीइंग एडेड कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल बर्निंग, so they are more responsible, but you have to be very very clear that this is something that can happen, okay, this is something that can happen because of different reasons, अलग अलग reasons की वजह से हो सकता है, okay। so acid rain everybody is clear, okay। and mostly acid rain क्या है, nature में होता नहीं था, okay। naturally we do not see that a lot of acid rain was there, this is mostly because of the anthropogenic factors, okay। आज की डेट में क्या है, it has been mostly because of the human activities, because of human activities, और उसमें भी टॉप पे अगर देखें तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग इज द रीजन, ओके। नेचुरली इट कैन हैपन, ओके। नेचुरल भी हमने कल क्या देखा था, सल्फर कहां से आ रहा है, वॉल्केनो से आ रहा है, ओके। सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ naturally also acid rain can be in the areas where some volcanic eruption is there, so there you can experience this thing, okay। volcanic eruptions are always associated with acid rains, but they are more localized, ठीक है, they are more localized in nature,
वो काफी लोकलाइज्ड होते हैं, ओके। लेकिन थर्मल पावर प्लांट जहां पे है, या फिर बहुत सारा व्हीकल जहां चलता है, द सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, ओके, सो दीज एरिया आर एसिड रेन प्रोन, ओके, जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज, दे आर ऑल। अब एसिड रेन में भी क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर कंटेंट, द एसिड रेन इज ऑफ टू टाइप्स, depending on moisture content. Acid rain is of two types, okay. एक को कहते हैं हम wet deposit and the other one is called as ड्राई डिपॉजिट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म्स? वेट डिपॉजिट क्या होता है, ड्राई डिपॉजिट क्या होता है? डब्लू सुना है आपने? ओके, बहुत ही सिंपल है, ओके। ड्राई डिपॉजिट और वेट डिपॉजिट जब हम कहते हैं तो इसमें when it is wet it means that the the chemicals are blown into areas where atmospheric conditions are wet, okay. So chemicals are blown into areas where atmosphere is wet, okay, and here chemicals same blow to dry atmosphere, okay. So we give them different names क्योंकि केमिकल कहीं से निकल के ही जा रहा है तो जहां भी पहुंचेगा, okay. Now both the types will affect the environment, okay. So wet deposit areas where atmosphere is wet, तो already वहां क्या है, more humidity is there, more moisture is there, okay. So when these blow to these areas, okay, so there is lot of water, so they usually get diluted, ठीक है, ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा तो इफेक्ट कम हो जाता है। बट इन दीज एरियाज, इन ड्राई डिपॉजिट एरियाज, okay, in drier atmosphere, if it is in air, the moment the rainfall starts, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ओके। सो ये सिर्फ नाम है, इसमें there are two types, तो इसको टाइप्स किस बेसिस पे है ये पूछा जाएगा। So you need to remember that this is based on moisture content, okay, and these areas relatively less impact. Why? Because lot of moisture is there, so it rains more. हमेशा बारिश होती रहती है तो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है, okay. So what are the effects of acid rain? बचपन से पढ़ा हुआ है आपने, effects of acid rain, okay. सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। You'll see that most of the questions that you find in exam are like really easy. Anybody can manage it without any problems, okay. बिना किसी दिक्कत के आप इसको easily manage कर सकते हैं। So what is the effect? Tell me. What will happen? एसिड क्या करता है? सिंपल है बहुत, ठीक है। आप एक कोई फ्रूट है, ओके, एंड इट इज हियर ऑन सम सरफेस, you allow it to rot, it is rotten, it means that certain fluid material will be there, okay.
This fluid is acidic. ओके अब ये अगर सरफेस पे है, हाँ रेनू बेटा वेरी गुड, डब्लू अभिषेक पुष्पांजलि वेरी गुड, ओके इट विल क्रिएट हेल्थ इश्यूज. सो इसका नेचर आपने क्या देखा है, यूजुअली दैट बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक फ्लूइड मटेरियल देयर इज discoloration of the surface. Okay, there is discoloration of the surface. यानी इसकी क्या कैपेसिटी है, इट कैन लीच आउट द मटेरियल, लीचिंग आउट ऑफ द मटेरियल. एसिड हैज द पोटेंशियल ऑफ लीचिंग आउट. कुछ हिस्से क्या है इस सरफेस के वहां से हट जाते हैं, इसलिए उसका कलर अलग दिखने लगता है. ओके सो लीचिंग आउट. सो एसिड रेन अभी प्लांट और एनिमल्स पे क्या होगा वो तो है. द फर्स्ट थिंग इज इफ इट फॉल्स ऑन सॉइल, द सॉइल लूजेज materials like aluminum, okay this will react iron and एटसेट्रा कर दीजिए. ठीक है, इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम जो भी है सब रिएक्ट करेगा. ओके सो एसिड है, बेसिक चीज है, अगर वहां कैल्शियम है तो वो भी रिएक्ट करेगा. ठीक है, सो एल्यूमिनियम कैल्शियम magnesium, you can put as many as you want. Okay, you can put as many names as you want. So finally that soil is losing, soil that loses material like this. So loss of nutrient, there is loss of nutrients for the soil. So soil quality will degrade. Basically क्या है, soil quality degrades. Okay, and when the soil quality is bad, it will definitely not be much productive. बहुत सारा वहां क्या है कि प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. Okay, now living tissues, get killed or harmed. It is acid. अगर स्किन पे गिरेगा तो क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेगा. ओके सो दिस इज लाइक मेनी ऑफ द स्किन डिजीजेज एंड ऑल आपके स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, अगर यही चीज हमने देखा है व्हेन सॉइल लूजेस द मटेरियल, सो योर मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, ताजमहल वाला सबको पता है, इट वॉज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. द मॉन्यूमेंट्स आर अफेक्टेड, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टेच्यूज. are affected. ओके सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है डिस्कलरेशन ऑफ ताज. ओके white marble is turning yellow as small pits are being created. वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है. ओके इट रिएक्ट्स विद द एसिड. कैल्शियम कार्बोनेट इज अ बेस, और जहां भी छोटे छोटे छेद हो जा रहे हैं वहां मिट्टी जमा हो रही है, येलोइश दिखने लग रहा है, गंदा. ओके सो दीज ऑल आर इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग. ओके सो मैन मेड स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एसिड रेन. तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बीइंग बिल्ट, okay it corrodes. The infrastructure is affected as the surface corrodes. In less time. Okay
So any areas a road is built, okay, a pathway is built. So if there is AC drain, तो वो क्या है, रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, तो आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं मेंटेनेंस में. ओके, सो ऑल दीज आर वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग. सो टिश्यू जब हमने कहा है लिविंग टिश्यू, तो यहां आपको समझना है इट अफेक्ट्स ऑल, यानी एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, suffer. Okay, even bacteria, fungi, all living tissues are affected by this. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा लिखता है कि it affects humans only, it affects this only. तो that kind of question you can see in exam. Okay, now so everybody is clear with this. अब आप नेचुरली क्या है, जब आप पानी पीते हैं, what is it comes from pipes. Okay, सो पाइपलाइंस की अगर हम बात करें, स्पेशली व्हाई दिस हैज बिकम वेरी डेंजरस फॉर द अर्बन एरियाज स्पेशली. ओके, सो वाटर पाइपलाइंस लीच आउट heavy metals into the water. Okay, so this acid rain leads to metal poisoning, and different type of diseases are seen in those urban areas where some industry is there, okay, which is prone to acid rain. ठीक है, आयरन, लीड, कॉपर, सब आपका क्या है, हैवी मेटल्स इसमें पानी में चले जाते हैं. एंड एनीथिंग विच इज मोर देन व्हाट द बॉडी रिक्वायर्स, हमें आयरन चाहिए, आवर ब्लड नीड्स आयरन. ओके, कॉपर भी चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बट इफ इट इज इन मोर क्वांटिटी देन सफरिंग इज देयर. और ये क्या है, वाटर पाइपलाइंस के थ्रू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज में. ओके, सो हार्ट डिजीज आपके बढ़ जाते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज बढ़ जाते हैं, ऑल दोज प्रॉब्लम्स दैट वी हैड सीन विथ लीड एंड एवरीथिंग, मरकरी. सो हैवी मेटल्स दे एंटर द फूड चेन. ओके, और इसके वजह से क्या है, मेटल पॉइजनिंग एंड दिस मेटल्स एंटर द फूड चेन. So each and every animal can get affected because of this. Okay, so everybody is clear. Now हम कई बार क्या करते हैं, when we talk about pollution, everyone recommends that we have to close the doors, we have to stay protected and not allow the thing that is outside to enter the houses. But if we look at the estimates, ठीक है, the indoor air pollution kills a lot of people. Almost 2.6 million people die every year because of indoor air pollution. So let us talk about indoor, घरों के अंदर जो एयर पॉल्यूशन होता है, ये कैसे होता है. What are the factors which are responsible for indoor air pollution? क्या लगता है, बताइए. साहिल बेटा, दिस इज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स का स्पेसिफिक कुछ टारगेट नहीं किया जाएगा, ये प्रीलिम्स के लिए ही है. प्रीलिम्स और मेंस बोथ बैच है ना, ये प्रीलिम्स बैच थोड़ी है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. अभी जो डिस्कशन चल रहा है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इज मोस्टली 80% ऑफ द डिस्कशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स ओनली. तो प्रीलिम्स बैच मान लीजिए इसको, और क्या है, ये प्रीलिम्स की तैयारी है जो आप देख रहे हैं, और क्या है, स्पेशल तैयारी कुछ नहीं होती, आपकी पढ़ाई स्पेशल है. इफ यूल सिट एंड यूल स्टडी, वो जरूरी है, किसी के पढ़ाने से पेपर नहीं निकलता है. ऑल दीज थिंग्स आर फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम डे वन. वॉट एवर वी आर स्टडिंग, लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आपने देखा है पेपर, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. पेपर नहीं देखेंगे और आप ऐसा सोचेंगे कि वो उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो
प्रीलिम्स का कुछ तो आएगा सोचेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड। और क्या आता है प्रीलिम्स में, ये प्रीलिम्स की ही तैयारी है आपकी। ओके, दिस इज द थिंग दैट विल बी आस्क्ड। इसमें कुछ 80% ऑफ द डिस्कशन दैट विल बी डूइंग इन दिस इज रिलेटेड टू प्रीलिम्स, 20% ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। ओके, सो इंडोर एयर पॉल्यूशन ये कैसे कैसे होता है। ओके, दिस इज समथिंग दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रीमैच्योर डेथ्स। $2.6 million people die every year. That's a huge number. ठीक है, अगर किसी को 70 साल जीना है तो वो 65 पे ही मर जा रहे हैं। ओके, सो इंडोर एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है। जस्ट टेल मी द सोर्सेस फॉर इंडोर एयर पॉल्यूशन। सोर्सेस क्या क्या है। घरों पे आप रहते हैं, what are the things that are happening at your home which can pollute? सभी लोग क्या है, गैस यूज करते हैं। गैस तो यूज होती होगी आपके यहां, लकड़ी से नहीं बन रहा होगा खाना। many of the people use fuel wood, okay, but many of you are using the CNG। ठीक है, आप गैस यूज कर रहे हैं। तो गैस क्या है, whenever it is not a blue flame, when it is like some reddish or yellowish flame, it means that the thing is not burning properly। और जबकि घरों के अंदर बंद रहता है तो क्या है, आप गैस पे हमेशा ब्लू फ्लेम दिखाई तो नहीं देती है, some redness is also there। okay, so fossil fuel burning of any type, वो CNG की गैस ही क्यों ना हो, that is responsible, okay, fuel burning is polluting the atmosphere। आपके किचन में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, जो यूजुअली हमें पता नहीं चलती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स कॉन्सेंट्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ओके, अब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप करवाते हैं, दरवाजा बनवा रहे हैं, टेबल बनवा रहे हैं, फर्नीचर बनवा रहे हैं। सो व्हेन यू मेक फर्नीचर, ओके, फाइन डस्ट पार्टिकल्स स्टे इन द एटमॉस्फेयर एंड दे स्टे देयर। वो क्या एक सेटल होता है, आप फिर झाड़ू लगाते हैं वो फिर उड़ता है। ओके, व्हेन यू ट्राई टू क्लीन दैट थिंग, it gets mixed in the atmosphere and no air is coming from outside and taking it away, it stays in the house। okay, now what more, हाँ, आप फ्रिज यूज करते हैं, ओके, आप एयर कंडीशनर यूज करते हैं, ओके, सो दे आर ऑल्सो एडिंग पॉल्यूटेंट्स। ये भी क्या है, पॉल्यूटेंट को ऐड कर रहे हैं। ओके, आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हैं, ओके, इंसेक्टी कोई इंसेक्ट हो तो उसको मारने के लिए कभी कभी आप इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। सो ऑल सच थिंग्स लीड्स टू इंडोर पॉल्यूशन। ओके, ये सारी चीजें क्या करती हैं, हाँ, यू यूज हीटर्स, ठीक है, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू यूज फॉर पर्सनल केयर, स्पिरिट्स यूज करते हैं, ठीक है, somebody saves तो सेविंग क्रीम यूज करते हैं। ओके, सो ऑल सच थिंग्स हैव सम फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ओके, इट इज लाइक इट इज बीइंग एडेड टू द हाउस। ओके, ये सारी चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ओके, ऑल ऑफ दीज आर डेंजरस फॉर द हाउस।
सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप का घर जो है, परफ्यूम यूज करते हैं, हाँ डब्ल्यू बेटा, यू कैन टॉक अबाउट परफ्यूम। तो वो सारी चीजें जो आपके घर पे हैं, दिस इज क्रिएटिंग सम फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। पीपल स्मोक एट हाउस, स्मोकिंग, सिगरेट्स, ओके। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं इट क्रिएट्स, हाँ एसी टोन, तो आप जिस चीज को यूज कर रहे हैं वो सारे पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है, मेनी ए टाइम्स यू विल सी दैट व्हेन पेंटिंग इज हैपनिंग, ठीक है, पेंटिंग आपके घर में हो रही है तो हेडेक होगा, इरिटेशन होगा। सो दीज आर साइंस दैट योर इंडोर एयर क्वालिटी इज नॉट गुड व्हेन देयर इज इरिटेशन इन द आई। घर पे आप बैठे हुए हैं, अचानक इरिटेशन होने लगे, स्पेशली व्हेन देयर इज पेंट वर्क गोइंग ऑन अराउंड, you'll feel this thing, okay, the irritation in the eye, severe headache, okay. In fact, even if we talk about the excessive moisture sometimes created, ठीक है, वो भी uneasy conditions create करता है, excessive moisture in the house, okay. It also creates uncomfortable conditions. तो छोटी मोटी चीजें, डिजीनेस, ऐसा लगता है जैसे तारे दिख रहे हैं दिन में, ओके, लाइट हेडेडनेस और डिजीनेस, दिस इज ऑल्सो इज रेस्पॉन्सिबल, ओके। एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन लीड टू व्हाट, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या है अभी दिखाई दे रही हैं, इरिटेशन ऑफ eye, nose, okay, but over a period of time this indoor air pollution, if in high quantities, it has potential of leading to very severe diseases like cancer, ठीक है, तो उसकी वजह से भी चीजें खतरनाक हो सकती हैं। So everybody is clear? So it is not only about, and sometimes radioactive substances, जो soil होता है घर में, okay, soil dust जो जमा होती है तो उसमें रेडियो एक्टिविटी होने लगता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर देयर, स्पेशली इंडोर वी सी दैट दीज सॉइल एंड डस्ट हैज रेडियो एक्टिव बिकॉज ऑफ रेडोन, ठीक है, आपके घरों में ये रेडोन रेडियो एक्टिविटी करता है। एंड व्हेन देयर इज रेडियो एक्टिविटी इट मींस व्हाट, इट कैन लीड टू स्किन डिजीज, इट कैन लीड टू कैंसर, ओके। सो radioactive substances are also there, and especially in those houses, okay, where the closed spaces, जिन कमरों में खिड़कियां नहीं होती हैं, okay, it is very very effective. So you'll see that a lot of people, okay, who live in closed houses, even in villages आप देखेंगे कि नीचे वाले लेवल पे खिड़कियां नहीं बनाई जाती हैं, okay, the first floor doesn't have windows. If you look at old houses, most of the times in the villages, तो वहां क्या है, अंदर रेडोन होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, जिससे आप देखेंगे महिलाएं, मोस्टली द फीमेल्स हु डू नॉट गो आउटसाइड मच, दे आर अफेक्टेड बाय दिस एंड सो दे आर फॉल सीवियरली इल, ओके। और हमें पता ही नहीं चलता है कि कारण क्या है, बीमार क्यों पड़ रहे हैं, ओके। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ this thing. So it is always advised that the houses should have good ventilation. If you want to check this thing, well ventilated houses are required, ठीक है। हम अक्सर सोचते हैं कि घर बंद रहता है तो बाहर का पॉल्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन that is very dangerous if there is no flow of the air throughout the house, because these things get trapped in the house, okay. And there is always some part of the day when air is relatively clean, तो वैसी टाइमिंग्स में खिड़कियां खोलनी चाहिए ताकि हवा बाहर निकल पाए, ओके। सो दीज इंडोर एयर पॉल्यूशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अर्बन एरियाज।
अर्बन एरियाज में आप जो दूसरी चीज देखते हैं वो है स्मॉग, और हमने कल भी बात की थी इसके बारे में. व्हाट इज अ स्मॉग? स्मोक प्लस फॉग. ओके, फॉग इज लो लेवल कंडेंसेशन. ओके, जब आपका मॉइस्चर बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाए, वो जमीन पे ही बादल की तरह है. द फॉर्मेशन इज सिमिलर लाइक द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. ओके, वाटर वेपर टर्निंग condenses to form clouds, so they are a form of that thing only. Okay, low level condensation से आपका fog बनता है. And if that area has a lot of smoke, okay, then it creates smog. Okay, but यूजुअली क्या है कि स्मॉग और फॉग के लिए हम स्मॉग यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जहां भी स्मॉग होगा वहां फॉग बन जाएगा. ओके, इट इज नॉट दैट इजी. So it is actually a chemical reaction. It results from a chemical reaction. Okay, it is an outcome of a chemical reaction. And if you look at this topic, अभी हमने एसिड रेन की बात की और इसकी की है. यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन लॉट मेनी टाइम्स. कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है. ओके, so usually it is mostly associated with those areas where large amount of coal is being burnt. ठीक है, वहां सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो काफी स्मॉग क्रिएट होता है. ओके, और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी आप प्रॉब्लमेटिक चीजें देख रहे हैं, ओजोन, ओके, सल्फर ऑक्साइड्स, वो सारे एलिमेंट्स इसमें होते हैं. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बिकॉज देयर इज स्मॉग. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स आर टुगेदर. तो अकेली ओजोन खतरनाक है, अकेला एस प्रॉब्लमेटिक है, अकेले आपका स्मोक भी सफोकेशन क्रिएट करता है. बट दिस इज समथिंग विच इज देयर इन द कंबाइंड फॉर्म. ओके, अब लेकिन स्मॉग जो है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्मोक. ओके, जो आप स्मॉग जानते हैं ये दो अलग अलग टाइप से बनते हैं. ठीक है, जब हम स्मॉग कहते हैं तो वी थिंक दैट इट इज ओनली वन थिंग. ठीक है, ये एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है. एक को हम कहते हैं क्लासिकल स्मॉग. ओके, क्लासिकल, दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्मॉग. यहां क्लासिकल वर्ड जब यूज करेंगे, ओके, सो इट इज सल्फर डाइऑक्साइड रिलेटेड. यहां पे क्या है, स्मोक प्लस फोग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड होगा. and sulfur is mostly associated with thermal power plants. coal burning जहां पे ज्यादा है. okay, mostly it is associated with areas where coal burning is more or there is thermal power plant. ठीक है, ऐसी जगहों पे ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. ओके, एंड दिस इज केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दो रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके, हैव यू हर्ड ऑफ दीज टर्म्स? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन एडेड. ओके, रिडक्शन ऑक्सीजन रिमूव्ड. ओके, रिएक्शन जब होगा तो वहां से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा. सो दिस इज ए रिडक्शन रिएक्शन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल स्मॉग, इट इज
it leads to reduction. Reactions, यानी ऑक्सीजन यहां कम होने लगेगा, and hence also called as reduction smog. Okay, so जब भी ये टर्म रिडक्शन स्मॉग आएगा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सल्फर डाइऑक्साइड. हाँ डब्ल्यू बेटा, वेरी गुड, यू आर अवेयर. ओके, सो दिस इज something that you need to know about this one, and this is very very common. सबसे common type जो है वो यही है. ओके, द अदर वन इज फोटोकेमिकल स्मॉग. जो दूसरा है उसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग. ओके, एंड इट इज फोटोकेमिकल. अब फोटो का मतलब क्या है? लाइट से रिलेटेड है. फोटो इज लाइट, तो सनलाइट का रोल होगा यहां. ओके, फोटो जो टर्म है दिस इज रिलेटेड टू लाइट. सो इफ सम केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द सन एंड इट इज गिविंग ए प्रोडक्ट, इट इज फोटोकेमिकल स्मॉग. ओके, और ये जब भी होता है इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ वार्म, ड्राई and sunny climate. Okay, warm, dry and sunny climate में ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है. Okay, and mostly when the sunlight acts on unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxide. यहां क्या है? सल्फर था, यहां नाइट्रोजन ऑक्साइड. Okay, this is when sunlight acts on unsaturated hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स क्या है? आपका जो फॉसिल फ्यूल है. मीथेन क्या है? CH4 हम लिखते हैं, तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है. ओके, दोस टाइप ऑफ थिंग्स विथ नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, सो नॉक्स के साथ जब रिएक्शन होगा तो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट होता है. ओके, एंड दीज आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज. ठीक है, यहां हमने क्या देखा था? जैसे कोल बर्निंग से ये ज्यादा एसोसिएटेड है, ये गाड़ियों की वजह से होता है. एंड सम फैक्ट्रीज विच रिलीज this thing. So most of the thing that smog या ब्राउन हेज नाम से इसी को हम जानते हैं. इट लुक्स ब्राउनिश इन कलर. ओके, अर्बन एरियाज में होता है, दिल्ली के ऊपर दिखाई देता है बहुत बार गर्मियों के दिन में. यानी अब आने वाले समय में दिस फोटोकेमिकल स्मॉग विल बी विजिबल ओवर दिल्ली. ओके, अर्बन सेंटर्स पे आपको यह दिखाई देता है. एंड दिस इज ए प्रॉब्लम दैट इट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. It has very high concentration of oxidizing agents. लिविंग टिश्यूज के लिए ये बहुत डेंजरस है. ओजोन होती है इसमें. ओके, ओजोन दोनों में हो सकता है, बट यहां क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. ओके, एंड सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, ऑक्सीडेशन स्मॉग. these are the terms that can be asked कि हम ऑक्सीडेशन स्मॉग किसे कहते हैं. ओके, फोटोकेमिकल स्मॉग किसे कहते हैं. तो these kind of questions you can see. ओके, एंड फोटोकेमिकल स्मॉग की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ओके इट क्रिएट्स ओजोन एंड पैन, जिसे हम पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं. ओके, सो फोटोकेमिकल स्मॉग का जो प्रोडक्ट है
PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, ये बहुत बार पूछा गया है कि किससे ये रिलेटेड है। ओके, यू हैव ओजोन, और स्मोक है तो बहुत सारा मटेरियल होगा, ये आपको अपने आप ही समझना है। ओके, सो अपने आप में ही अगर ओजोन की बात करें या हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की ही बात करते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग में ये भी है। दे आर इरिटेंट्स ऑफ आई, अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी है। ओके, सो दे विल इरिटेट द नोज, द थ्रोट, द आई। ओके, इट इरिटेट्स nose, throat, eyes. Okay, so this is even in small quantities. Okay, भूमि बेटा कुछ छूट गया आपका, make it fast, जल्दी जल्दी। Okay, so this is some statement, पढ़ के ये खुद भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन स्मॉग बनेगा, make it fast but okay. Okay, now नोज, थ्रोट, आई इन्फेक्शन, ये सब बहुत सारी कॉमन चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो कि आपको दिखाई देता है। ओके, एंड दीज कैन ऑल्सो लीड टू हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस, ठीक है, कफ, चेस्ट पेन, हेडेक, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं इनके प्रेजेंस की वजह से, व्हेन देयर इज ओजोन एंड नाइट्रोजन। ओके, और पैन की अगर हम बात करते हैं, ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात की थी। सो दिस इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग टिश्यूज। ओके, दिस इज रियली हार्मफुल फॉर द लिविंग टिश्यूज। लिविंग टिश्यूज के लिए काफी डेंजरस है। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करता है? एक्सेसिव डैमेज टू द लाइफ। ओके, लिविंग टिश्यूज को क्या है? इट अफेक्ट्स लिविंग टिश्यूज। एंड रबर जो होता है, ओके, इट क्रिएट्स क्रैकिंग ऑफ द रबर। ठीक है, रबर बहुत हार्ड हो जाती है, तो रबर का जो भी मटेरियल होगा इसके प्रेजेंस में वो टूटने लगता है, जबकि रबर कैसा होता है? उसे इलास्टिक होना चाहिए। सो क्रैक्स डेवलप ओवर। आप देखेंगे कि इन अर्बन एरियाज, ओके, जो टायर है वो हार्ड होके ऐसा तोड़ने लायक हो जाते हैं बहुत बार। ओके, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। सो इट ऑल्सो लीड्स टू the cracking of the rubber. Okay, ये इसकी वजह से भी क्या है, ये चीजें होती हैं। It affects the living tissues, so photochemical smog. Okay, लेकिन अगर आप देखते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग को, एक तरह से हमने देखा तो व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एवरीथिंग वी हैव ब्लेम्ड। ओके, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें जो हैं, आपके पेंट जैसी चीज, ओके, दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द फोटोकेमिकल स्मोक। जो पेंटिंग होती है, ओके, इसमें बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि इसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लॉट ऑफ केमिकल सॉल्वेंट्स आर देयर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल स्मोक, एंड दीज थिंग्स आर हार्ड टू चेक। ठीक है, आप जो प्रिंटिंग के लिए इंक यूज करते हैं, ओके, प्रिंटिंग इंक, एवरीबडी इज गेटिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द नोट्स एंड एवरीथिंग। सो प्रिंटिंग इंक, इट कैन ऑल्सो कंटेन्स ऑन द मटेरियल विच विल हैव निगेटिव इम्पैक्ट। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग तो है ही, बट ये सारी चीजें दे इंटरैक्ट विद द सनलाइट एंड लीड टू फोटोकेमिकल प्लस सनलाइट
and they lead to the formation of the photochemical smog. Okay, so इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, so you need to remember these points. Okay, and this smog is ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन की हम बात नहीं कर रही हैं. सो दीज आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, अब फोटोकेमिकल स्मॉग को कम कैसे किया जा सकता है. गाड़ियों में आपका क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स का नाम सुना है आपने. हाउ टू चेक फोटोकेमिकल स्मॉग. The best solution is by not allowing the pollutants to enter the atmosphere. Okay, and this function in automobiles we use catalytic converters. इनका काम ही यही होता है कि दे चेक द पॉल्यूटेंट्स. ओके, दिस इंफॉर्मेशन वाज आल्सो आस्क्ड वंस. ठीक है, एक बार ये भी पूछा था. ओके, लेकिन ये तो चीज है जो मैकेनिकली आप कर रहे हैं, बट इफ वी हैव टू चेक अबाउट द पेंट्स एंड एवरीथिंग, then there has to be a solution around the houses as well. और इसमें आपका क्या है, the vegetation is playing an important role. ठीक है, the vegetation and plants, there are certain plants which can control this thing. तो जो भी areas हैं human habitation, we need to make sure that we are planting some of the trees which can help. For example, पाइनस नाम का एक ट्री, जूनिपर्स, विटिस. ओके, यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स. ये पौधे आपने देखे हैं नहीं देखे हैं इससे मतलब नहीं है, आज फोटो देख लीजिएगा खोल के, लेकिन इसको याद रखिए. ओके, क्वेरकस, पायरस, because you can find some of these names in the options that will be given to you in prelims. ठीक है, कि which of the following plants can help in reducing the smog, और ये नाम आपको वहां दिखाई देंगे, सो याद रखिए. ओके, ऑल दीज प्लांट्स, इनका फंक्शन क्या है, दे कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. and thus reduces the amount of nitrogen in the atmosphere. So smog is reduced. Okay, so I hope everybody is clear with this. और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में सल्फर नहीं होगा. सम स्मॉल क्वांटिटी विल बी देयर. ओके, बट इट विल नॉट रिएक्ट. ठीक है, रिएक्शन उसका काम नहीं कर रहा है. ना ही इसका क्लासिकल स्मॉग में नाइट्रोजन नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, दे एग्जिस्ट बट इन स्मॉल क्वांटिटीज. ओके, नाउ एयर पॉल्यूशन वी हैव सीन. सो व्हाट आर द डिफरेंट things that the government has done in order to control this. Okay, गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताइए, आप लोग सुनते रहते हैं.
नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के बारे में सुना है? द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, हैव यू हर्ड ऑफ? कंटेम्प्रेरी वाला कोई भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। या पूजा बेटा, अब दिखाई दिया है योर मैसेज। ओके, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, अभी कमेंट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके, एंड इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस दिस प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग रिजॉल्व्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, to control air pollution. The government initiatives to control air pollution. Okay, we'll talk about them. So, मैं आपको सिर्फ रेफरेंसेस में ये प्रोग्राम्स बताने वाला हूं, जो न्यूज में रहेगा उस पर फोकस करेंगे। ओके, सो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। Okay, this is one of those initiatives जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। ओके, तो ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जानना है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच हैज फोकस्ड ऑन 4 एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, एयर क्वालिटी कैसा है नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक स्कीम को करना चाहिए। क्वालिटी चेक में क्या करेंगे, ओके, बट इसमें याद रखने लायक जो चीज है जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो ये है कि what are the 4 pollutants which are covered under this. Okay, so it checks 4 pollutants. इनका फोकस जो है वो 4 डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स पे है, एंड दिस थिंग कैन बी आस्क्ड। द फर्स्ट इज SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, then suspended particulate matter, SPM, that is suspended in the atmosphere, and those respiratory particulate matter जो आपके लंग्स में जा सकते हैं। ओके, सो रेस्पिरेबल सस्पेंडेड particulate matter। Okay, so you need to focus on these 4. This can directly be asked in the exam. Okay, so they are identified for regular monitoring. Okay, regular monitoring of these 4 things. रेस्पिरेबल क्या होगा, जो PM10 या उससे छोटे होंगे। ओके, सो दिस इज रेस्पिरेबल। व्हेन वी ब्रीथ दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन एंटर आवर लंग्स। ओके, एंड दे आर ऑफ कोर्स एवरी डे दे आर एंटरिंग आवर लंग्स। तो इन 4 चीजों को ये चेक करता है। ओके, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉइंट्स एज वेल रिलेटेड टू इट। अगर ये न्यूज में आता है तो वो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, नहीं तो रेगुलर क्वेश्चंस में यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग।
Okay, anything which is in news is more important than the things that are existing for many years, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने प्रोग्राम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई न्यूज में है तो उसको पढ़ेंगे. ओके, नाउ NAMP हमने देखा. अभी इसी से रिलेटेड अगर हम देखते हैं कि व्हाट अदर इनिशिएटिव द गवर्नमेंट इज डूइंग, सो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बनाया है. Have you heard of this National Ambient Air Quality Standards, NAQS? ये सारे न्यूज में आता रहता है. इफ यू आर रीडिंग द न्यूज पेपर यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड वे बैक इन द ईयर 1982. ठीक है, बहुत पहले ही हमने बनाया था, एयर एक्ट के आने के एक साल बाद ही. ठीक है, 1981 हमने पढ़ा है, एयर एक्ट आया था. ओके, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग. सो इट इज फॉर मेजर आउटडोर पॉल्यूटेंट्स. ये क्या है? मेजर आउटडोर पॉल्यूटेंट्स फोकस है इसका. ओके, एंड इट फोकस्ड ऑन 6 ऑफ देम. और यही 6 क्या क्या हैं आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. ओके, सो दिस इज लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग प्रोग्राम से कौन अलग अलग गैसेस हैं या मटेरियल है वो आपको याद रखना होगा. ओके, SO2, NO2, ओजोन, ओके, एंड पार्टिकुलेट मैटर. ओके, सो 3 अलग है इसमें, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन. पार्टिकुलेट मैटर में उस वाले में क्या है? 2 टाइप था, एक सस्पेंडेड एक रेस्पिरेटरी. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. मेजर आउटडोर पॉल्यूटेंट्स किसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है. ओके, एंड नाउ दिस वाज रिव्यूड in 2009 and 6 more pollutants were added. Okay, so this is what the government of India did in 1982 or 2009 में they changed the thing. Okay, so write down arsenic, nickel, benzene, ammonia. Arsenic, nickel, benzene, ammonia. And you'll have to remember these all. जितने नाम है, बेंजोपायरीन, बेंजोपायरीन, ओके. और यहां जो पर्टिकुलेट मैटर दिखा हुआ है, यहां इन्होंने स्पेसिफिकली 2009 में क्या किया, इस पर्टिकुलेट मैटर को PM 2.5 एंड PM 10 कर दिया गया. Okay, this is PM 2.5, PM 10. Okay, because in 1982 mostly we were focusing on PM 10 only.
ठीक है, वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नहीं किया था, बट आवर टेक्नोलॉजी वाज एबल टू टेक केयर ऑफ PM10 ओनली. ओके, नाउ दिस PM2.5 इज द न्यू एडिशन. तो इस पे आपका क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यू. ओके, तो नोट इट डाउन. एनी ऑफ देम कैन बी आस्क्ड. ठीक है, मेमोराइज करना होगा आपको और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है. ओके, नाउ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. Okay, this is one of the most famous programs. It was launched in 2014. Sorry, 2019. Okay, ये 2019 का है, तो अभी का ही है, वेरी रिसेंट वन. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. इसके अंदर क्या कर रही है? सो दे आर सम नेशनल लेवल टारगेट्स. ओके, there is a national level target. Okay, and these targets can be asked in exam. Clean air अगर हमें अचीव करना है तो some thing has to be there, और ये इस साल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज 2024 तक का ही टारगेट है. सो हाउ मच वी हैव फेयर्ड, इट कैन बी आस्क्ड. ठीक है, ये फ्यूचर में 24 में खत्म होने वाला है, तो ये पूछा जाएगा. सो 20 to 30% रिडक्शन in PM 2.5, particulate matter 2.5 and PM 10 by 2024. Okay, so this date is important, this is important. Next year the target has to be achieved. Okay, okay, और कंपेयर करेंगे, बेस ईयर कभी कभी पूछता है. सो द बेस ईयर टेकन इज 2017. So 20 to 30% reduction from 2017 levels by 2024. ठीक है, so this is something that you need to remember. Now National Air Quality Index. आपको ये सारे करंट अफेयर्स में भी मिलेंगे. you'll see this thing, whatever source you are reading for current affairs, the magazines, you'll see them. Okay, अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स was launched in 2014. ठीक है, तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जब नई गवर्नमेंट आई थी, they have done a lot of things for almost everything. so this ईयर का प्रोग्राम है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड the outline for this they had given was 1 number, 1 color, 1 description. Okay, this was something that was the motto of this program. और यहां क्या है, they were, it was launched for monitoring the air quality on a real time basis. ठीक है, अभी के अभी कैसा चल रहा है, जो आप बोर्ड्स देखते हैं, it represents कि कितना particulate matter है, CO2 कितना है, you'll see these things. Okay, so real time monitoring of the pollutants. Okay, so this was for real time monitoring of the pollutants, और इसमें 8 pollutants were included.
देखिए बहुत रिवीजन करना होगा तभी क्लैरिटी आएगी, बिकॉज एवरी प्रोग्राम दैट वी आर लुकिंग एट, ओके, हैज ए डिफरेंट पॉल्यूटेंट। ठीक है, कहीं 4 है, कहीं 6 है, कहीं 12 है, यहां 8 है। ओके, सो दिस इज PM10, PM2.5। यही पूछा जाएगा कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को स्टडी किया जा रहा है। PM10, PM2.5, देन NO2, SO2, ये लगभग सभी में है, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया एंड लीड। NH3 and lead, that is represented by PB. Lead. Okay, so you'll have to make sure that you are marking it up. ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, you cannot avoid not remembering these, क्योंकि this will be directly asked. Okay, the year 2014 and 8 pollutants, सब में कौन कौन से पॉल्यूटेंट है याद रखना है। ओके, नाउ इसी में क्या है, जब ये लागू किया गया था इसके चक्कर में दिल्ली गवर्नमेंट का आपने ऑड इवन स्कीम सुना होगा। ओके, कि दिल्ली में 1 नंबर की गाड़ियां एक दिन चलेंगी, दूसरे नंबर की गाड़ियां दूसरे दिन चलेंगी। सो ऑड इवन स्कीम एंड थिंग्स लाइक दैट वेर पार्ट ऑफ दिस। ओके, और इट हैज 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी। Okay, so write down, it has 6 categories of air quality. Good, satisfactory. First is good, second is satisfactory. Good, satisfactory. Moderately polluted. Good, satisfactory, moderately polluted, moderately polluted, poor, very poor and severe, poor, very poor, severe, poor, very poor, severe. Okay, good, satisfactory, moderately polluted, poor, very poor, severe. ओके, और इसी के लिए क्या है, उन्होंने कलर कोड्स यूज किए थे सो दैट द कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड। जो यहां हमने लिखा है 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, इनके लिए कलर कोड्स यूज करते हैं सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अभी व्हीकल से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स किए इंडियन गवर्नमेंट ने। So Bharat stage norms, you must have heard of this. Bharat stage norms, BS1, BS2, BS3, ये टर्म आप हमेशा सुनते रहे होंगे। ओके, whenever there is a vehicle, सो अभी क्या है, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा द मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स दे वर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टाइम फॉर BS6। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, इंजन्स को और
जो फ्यूल यूज करना है उसके लिए एक कैटेगराइजेशन की है भारत स्टेज नाम से। ओके, सो इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। These standards have been instituted by, these standards have been instituted by, good अभिषेक आपने सुना हुआ है, good, instituted by the Central Pollution Control Board, CPCB, Central Pollution Control Board, instituted by the Central Pollution Control Board, within the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Full stop. These are the standards set up by the Indian government. These are the standards set up by the government. These are the standards set up by the government to allow, to specify कर दीजिए, allow नहीं, to specify the pollutants which come out of the pollutants which comes out of the internal combustion engine, which comes out of the internal combustion engines, यानी जो गाड़ियों में इंजन है, ओके, वहां क्या है, जो जल रहा है फ्यूल वो गाड़ी के अंदर ही जल रहा है, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स। including those which the vehicles cannot emit, including those which the vehicles cannot emit, यानी वो पॉल्यूटेंट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो धुएं के साथ बाहर नहीं आ रहे हैं गाड़ियों से। ओके ओके, अब ये हमारा जो है was मोटिवेटेड, जो मोटिवेशन अगर हम करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में ये नॉर्म्स चलते थे, हमने वहां से लिया है, ठीक है, ईयू नॉर्म्स, जिसे हम क्या है कि यूरो नॉर्म्स कहते थे। ओके, सो दिस इज डायरेक्टली हमने यूरो नॉर्म्स से सीखा है, यूरोप से। ओके, द व्हीकल एमिशन नॉर्म्स, the vehicle emission norms were introduced in India in the year 1991, were introduced in the year 1991 for petrol, 1991 for petrol, and 1992 for diesel, and 1992 for diesel vehicles, and in 1992 for diesel vehicles. Okay, in the year 2000, in the year, full stop के बाद लिखिए, in the year 2000 the government of India decided to follow the Euro norms. In the year 2000 the government of India decided to follow the Euro norms, which goes by the name Bharat Stage Norms, which goes by the name Bharat Stage Norms, Bharat Stage Norms. Okay, today the country, today the government is up for BS 6,
for BS6 norms. ठीक है, देयर वॉज, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, देयर वॉज नो BS5 स्टेज. ठीक है, 1 2 3 4 के बाद सीधे 6 पे आ गए. देयर वॉज नो BS5 स्टेज. ओके, नाउ सम टारगेट्स हैं जो BS4 से कम करने थे BS6 में इंजन को चेंज करने के लिए. सो विल राइट अबाउट दैट. ओके, सो फर्स्ट राइट पार्टिकुलेट मैटर. BS6 की हम बात कर रहे हैं. ओके, BS6 has following criteria. Right, BS6 has following criteria. First for criteria लिखने के बाद dash PM particulate matter. Particulate matter. The BS6 norms. The BS6 norms intend to bring down. The BS6 norms intend to bring down. The BS6 norms intend to bring down. Intend to bring down the emission of the particulate matter. The emission of the particulate matter by almost 80%. Emission of the particulate matter by almost 80%. By almost 80% in case of petrol. 80% in case of petrol. In case of petrol, as well as diesel, as well as diesel. ठीक है, now next is NOx, nitrogen oxides. NOx. ओके, 4 वाले से कंपैरिजन करके हम लिख रहे हैं. 4 से क्या है, 80% कम करना है. नॉक्स फॉर पेट्रोल व्हीकल्स, द इमिशन शुड रिड्यूस बाय 25%. फॉर पेट्रोल व्हीकल्स द इमिशन ऑफ नॉक्स should reduce by 25%. And for diesel vehicle, the reduction of 70%. And for diesel vehicle, the reduction of NOx by 70% when compared with BS4. When compared with BS4. When compared with BS4. When compared with BS4. Okay. Now next is sulfur. The BS6 has targeted 5 times less sulfur. The BS6 has targeted 5 times less sulfur
as compared to BS4, 5 times less sulfur when, okay, and beyond this whatever is in news, अगर न्यूज में कुछ है तो उसको आपको कवर करना है, ठीक है। बैटरी रिलेटेड बहुत न्यूज आ रही है, बहुत सारे हैं, ठीक है। नाउ इसी में क्या है, ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रीन क्रैकर? व्हाट इज ग्रीन क्रैकर? किसी भी अभी बम फोड़ते हैं सभी लोग दीपावली में, कोई पूजा हो गया, कुछ फेस्टिवल हो गया, क्रिकेट में जीत गई इंडिया, वी बर्स्ट क्रैकर्स। सो व्हाट इज ग्रीन क्रैकर? आप किस क्रैकर को ग्रीन क्रैकर बुलाएंगे? अभिषेक, रेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट इज ग्रीन क्रैकर? नहीं, अगर ये पॉल्यूशन क्रिएट ही नहीं करेगा तब तो ये गवर्नमेंट जबरदस्ती लागू करवा देती ना। एनी क्रैकर, ओके, which reduces 30% particulate matter, reduction of 30% particulate matter at an average। जितना नॉर्मल क्रैकर्स गंदगी करते हैं अगर उसमें 30% रिडक्शन हो जाता है तो सिर्फ 30% से बहुत इको फ्रेंडली नहीं हो पाता है। बट डेफिनेशन, आप ग्रीन क्रैकर सोचते हैं कि पॉल्यूशन नहीं करेगा, स्टिल 70% पॉल्यूशन ये करेगा। ओनली एक्सपेक्टेड इज 30% रिडक्शन। अगर 30% भी रिड्यूस कर रहा है, वी कॉल इट एज ग्रीन क्रैकर। अब आप बारूद जलाएंगे तो धुआं तो होगा ही, लेकिन कम धुआं हो, ओके, दिस इज ग्रीन क्रैकर, ओके। नाउ स्मॉग टावर्स न्यूज में रहते हैं। व्हाट इज स्मॉग टावर? बीजिंग में लगा था, फिर दिल्ली भी बनाएगा बोल रहा था, ठंडियों में ये हमेशा न्यूज में आता है। व्हाट इज स्मॉग टावर? बीजिंग और जिनजियांग प्रोविंस में स्मॉग टावर्स चाइना ने लगाए हुए हैं। स्मॉग इज ए प्रॉब्लम इन सिटीज। ये एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, एयर प्यूरिफायर्स, ओके, फिटेड इन ए टावर। बहुत सारे एयर प्यूरिफायर फिट कर देते हैं टावर में जो गंदगी को खींच लेता है, ओके। नाउ मोर कॉमन थिंग दैट इज यूज्ड इन इंडिया, एंटी स्मॉग गन्स। ये क्या होता है? एंटी स्मॉग गन, स्मॉग टावर्स आर इन बीजिंग। ये अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपने देखा होगा ट्रक के पीछे एक डिवाइस लगा होता है, दिस इज अ ट्रक, ओके, हियर ड्राइवर इज देयर, और ये पानी छिड़कता हुआ जाता है, ओके, दे स्प्रे वाटर अप टू 50 meters so that all the particulate matter becomes heavy। particulate matter भारी हो जाए और वो पानी के साथ नीचे गिर जाए, ओके। सो cannon of spray is used to throw the water up to 50 meters,
This is a cannon of water. So that at least 50 meters above the ground it is clean. जहां लोग चलते हैं, जहां सांस लेते हैं, वो particulate matter वहां settle हो जाए, गिर जाए. Okay, because water vapor makes it heavier, it falls down to the ground. Okay, so it is used for bringing down the particulate matter. ये as a whole smog को नहीं उड़ा सकता है, ठीक है, नाम है एंटी स्मॉग गन, लेकिन पर्टिकुलेट मैटर नहीं रहेगा तो स्मॉग भी क्या है, यूज होता है. हाँ अभिषेक बेटा आपके यहां भी आता है ना, तो ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. ओके, अब कभी कभी हम कहते हैं बैड ओजोन या फिर कहते हैं गुड ओजोन. ये क्या है? You must have heard of the terms bad ozone, good ozone. ये क्या है? What is bad? What is good? Bad and good ozone. सुना तो सबने होगा. सो सिंपली याद रखिए, नोटबुक में भी अपने लिख सकते हैं, बैड ओजोन इज दैट इज इन द लोअर एटमॉस्फेयर. अगर ट्रोपोस्फेयर में जहां हम रहते हैं, जहां स्मॉग बन रहा है, तो दिस इज डेंजरस फॉर द लिविंग टिश्यू, तो दैट इज बैड ओजोन. लेकिन जो हमें यूवी रेज से बचाता है, दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज गुड ओजोन. ओके, दैट इज गुड ओजोन. तो ये नाम यूज होते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार. ओके, तो ऐसे छोटे छोटे टर्म्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो गुड ओजोन इज इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ओजोनोस्फेयर जो है, जहां ओजोन लेयर बनी हुई है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बताते हैं. ओके, नाउ देयर इज वन मोर टर्म दैट यू नीड टू नो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. न्यूज में बार बार आता है फ्लाई एश. ये क्या होता है? फ्लाई एश. Heard of this? जब आप कोल को जलाते हैं, ओके, सो फाइन पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड. ठीक है, द कोल इज बर्न्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स, ओके, एज बाई प्रोडक्ट. इन थर्मल पावर प्लांट्स या दूसरी जगह भी, ठीक है, मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स में ज्यादा क्वांटिटी में होता है. ओके, सो व्हेन द कोल इज बर्न्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स, तो उस राख जो बचती है, ठीक है, फ्लाई एश यही है. नाउ दिस इज वेरी लाइट. ओके, अब ये बहुत ही हल्की चीज होती है जो हवा में इजीली उड़ सकती है. ओके, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी बर्निंग, एनीथिंग व्हेन बर्न कैन रिजल्ट इन फ्लाई एश, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट्स में होता है. ओके, द रीजन बीइंग दैट दे हैव सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, सब्सटैंशियल amount of elements in them. ठीक है, और ये एलिमेंट्स कैसे हैं? माइक्रोन साइज्ड हैं, बहुत छोटे हैं, जो लंग्स में जा सकते हैं. ओके, एंड इफ दे एंटर लंग दे कैन बी वेरी डेंजरस. फ्लाई एश वॉल्केनिक इरप्शन में भी ऐस वो फाइन क्वालिटी का जो होगा. सो दीज एलिमेंट्स की हम बात करें तो पॉल्यूटेंट्स हैं. ये आर्सेनिक है, बोरोन है. ओके, एंड ऑल दीज इन स्मॉल क्वांटिटीज इफ दे एंटर आवर लंग, सिलिका. तो
फाइब्रियोसिस करवा सकता है, इट कैन लीड टू फाइब्रियोसिस ऑफ द लंग। क्रोमियम, लीड, जितने भी मेटल्स आप ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज फ्लाई एश, ठीक है, इन्हें हम फ्लाई एश कहते हैं। सो द हैवी मेटल्स एंड ब्लैक कार्बन, इसमें क्या होता है, हैवी मेटल्स प्लस ब्लैक कार्बन, और ये साइज क्या है, बहुत छोटा है, PM 2.5 या लेस। ओके, पार्टिकुलेट मैटर का साइज बहुत छोटा है, इट कैन इजीली एंटर द लंग। वैभव बेटा 23 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और फोकस से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि आपको आईएएस बनने में अभी जल्दी नहीं है, ठीक है। आईएएस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो आप फोकस कर पाएंगे। ओके, सो यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू अदर थिंग्स, सो यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज। तो खुद से पूछिए कि आपकी प्राइमेसी इस साल आईएएस बनना है कि नहीं, देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टडी। जो चीज किसी की भी प्राइमेसी है वो उसके लिए समय निकाल लेता है। ओके, एंड this is problem why, because when it is going in the atmosphere it can easily get transported up to 20 kilometers 30 kilometers। तो मतलब कोल पावर प्लांट से निकलते ही ये क्या है, काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, अब इसको जब हम डिस्पोज करते हैं, when disposed, अगर आप हवा में नहीं जाने दे रहे हैं, ओके, it can pollute groundwater with heavy metals, this when burnt can go up to, can spread up to 20 kilometers। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विथ फ्लाई एश। वैभव बेटा जो मैंने आपको बताया, डू मेक श्योर दैट यू थिंक ऑफ इट। डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और नॉट? इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, द मोमेंट यू थिंक ऑफ एग्जाम यू विल स्टार्ट स्टडिंग, अंटिल अनलेस आप बहुत बीमार नहीं है, घर पे कोई दिक्कत नहीं है। फोकस नहीं करने का मतलब है कि आप आईएएस बन जाते तो अच्छा होता वाले फेज में है, बनूंगा वाले फेज में नहीं है, ठीक है। बनूंगा ही जब दिमाग में आएगा तो पढ़ाई होगी। बन जाते तो अच्छा होता, तो ऐसे हम भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो अच्छा होता, वो तो सभी ड्रीमर्स सभी होते हैं, ठीक है। तो वो ड्रीम देखना और ड्रीम को चेज करना दो अलग अलग चीजें हैं। सो आपने ड्रीम देखा है, चेज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप उतना मोटिवेशन नहीं रख पा रहे हैं अभी। सो आस्क योरसेल्फ, द आंसर लाइज विथ यू, कि आप पढ़ना शुरू करेंगे या नहीं। ओके, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ेंगे, नहीं चाहिए तो फिर बिना मेहनत के नहीं होगा, ये आपको भी पता है। ओके सचिन, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, नाउ दिस इज समथिंग दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये लंग्स में जाएगा तो क्या क्या बीमारियां होंगी आपको पता है, ठीक है। सो फ्लाई एश के बारे में वो एस्पेक्ट देखते हैं जो फायदेमंद हो सकता है। ओके, सो ये जो एश है, इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड थिंग्स एज वेल। ओके, द यूजेज ऑफ फ्लाई एश, इसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन मेक ब्रिक्स। हाँ डब्ल्यू बेटा, वेरी गुड। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, और इसको आप ब्रिक्स बना के घर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज मेड अप ऑफ एश। तो इसका क्या है, बहुत फाइन मटेरियल है। क्ले कैसा होता है, काफी चिपक जाता है। या सचिन बेटा, यू नीड टू चेक द क्राइटेरिया। यूपीएससी में अपीयरिंग कैंडिडेट्स दे सकते हैं, मंथ बस अपना एज देख लीजिएगा, एज अगर आपकी हो रही है तो आप दे सकते हैं। ओके,
So it can be used as replacement to cement. Okay, it can be used as replacement to cement. It can help to improve the acidic soil. ठीक है, जलता है तो बहुत ही बेसिक नेचर भी इसमें एस क्या है, फाइन दिस थिंग. सो एसिडिक सॉइल्स में ये यूज कर सकते हैं. ओके, जहां इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. So if there is some area where you want to save water, you can use fly ash. ठीक है, सो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो सॉइल की इंप्रूवमेंट के लिए या कहीं जमीन जो खराब है वहां पे आप यूज कर सकते हैं. और राख तो क्या है, हमेशा से ही स्लैश एंड बर्न में क्या था, स्लैश एंड बर्न, राख से ही क्या है प्रोडक्टिविटी. तो इट मेक्स फर्टाइल सॉइल. फ्लाई एश इन एग्रीकल्चर कैन इंक्रीज यील्ड. राख ही है ये. ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि हैवी मेटल्स को हमें निकालना होगा. ओके, आप उसी फॉर्म में यूज करेंगे तो दिक्कत होगी. ओके, सो आई होप दैट एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. और जहां भी इसे यूज किया गया है, ओके, यू विल सी दैट अगर हम क्रॉप्स की बात करें और इंप्रूवमेंट इन यील्ड की बात करें फ्लाई एश से, okay, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल नहीं है, जहां पे किया है शुगर केन का प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाता है. ओके, इंप्रूवमेंट इन यील्ड बाय ऑलमोस्ट 25%. ये काफी ज्यादा अच्छा है. ओके, वेजिटेबल्स, द इंप्रूवमेंट इज अराउंड 25%. यहां 10% टू 25 लिखिएगा. ओके, because in some of the areas like northern India we see improvement of 10 to 15%. in Maharashtra almost 25%. okay, अगर हम रूट वेजिटेबल्स की बात करें, आलू टाइप के, ठीक है, द रूटेड वेजिटेबल्स जो जमीन के अंदर होते हैं. ओके, सो दिस यील्ड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. 30 to 40% इंप्रूव हो जाता है. ओके, सो अगर इसे हम साफ कर पाए, इफ वी कैन क्लीन इट फ्रॉम हैवी मेटल्स, देन इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर क्रॉप्स. तो आपको और क्या चाहिए. ओके, ठीक है, तो हर चीज में इसका फायदा है. सो दिस इज समथिंग दैट देयर इज देयर. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैज ए फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पॉलिसी. ठीक है, गवर्नमेंट इसको यूज करना चाहती भी है. गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन फ्लाई एश डिस्पोजल एंड एवरीथिंग. एंड इफ यू लुक एट इन्हीं पॉइंट्स में से क्या है, 3 बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है. थ्राइस दे हैव आस्क्ड अबाउट फ्लाई एश एंड क्वेश्चंस वेर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. अगर किसी को पता है कि राख है ये तो आंसर कर देते. ओके, राख में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा. ओके, नाउ नॉइज पॉल्यूशन. ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज नॉइज पॉल्यूशन, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट टुडे. कल देखेंगे इसे. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन because I have another lecture.
So noise pollution is the topic that will start tomorrow. Okay. I hope that everybody was clear with this. और जैसे बीच में क्या है कि somebody was asking कि prelims specific क्या होगा, आज का पूरा lecture ही prelims है. Okay, most of the discussion that we are going to do will be related to prelims. लेकिन जैसे अभी बहुत सारे बच्चे वैभव को भी फोकस नहीं हो रहा है, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद से पूछिए कि सच में आपको आईएएस बनना है या नहीं. इच्छा होना काफी नहीं है. आई वॉन्ट टू बिकम पीएम, लेकिन इच्छा होने से मैं पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, मैं टीच कर रहा हूं. ओके, तो नहीं हो पाएगा. ओके, आई वॉन्ट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और मेरी सिटीजनशिप इंडिया की है, मैं अमेरिका गया ही नहीं, तो प्रेसिडेंट वहां का कैसे बनेगा कोई. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज दिस थिंग. नहीं बेटा, कल भी होगी क्लास आपकी, सैटरडे वी हैव क्लास. Saturday we have class. Okay, so I hope that everybody is like clear. कल हम नॉइज पॉल्यूशन पढ़ेंगे. जस्ट दिन में क्या है कि 3-4 बार खुद से पूछेंगे सच में आईएएस बनना है या नहीं बनना है, आप देखेंगे आप बन जाएंगे. ओके, हाँ डब्ल्यू बेटा, पॉल्यूशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन. आज का लेक्चर ऐसा है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे. इन ए सिंगल लेक्चर यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, हर आज जो मैंने पढ़ाया है आपको, हर साल 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स एंड कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव. ओके, जस्ट विलिंगनेस, ओके, और वांट will not give you something. Okay, you'll have to strive hard to achieve your goal. So everyone stay healthy, stay blessed. Thank you very much.